پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان پر وزیرآباد میں لانگ مارچ کے دوران حملے کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی عہدیداروں نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ ہماری دعائیں ہماری ماں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہر اوورسیز پاکستانی کی، ہر مسلمان کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ سن لیں کہ آج جو آپ نے حملہ کیا ہے یہ پاکستان پر حملہ کیا ہے، یہ عمران خان پر نہیں، یہ 22 کروڑ عوام پر حملہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ جذبہ جو جنون ہے یہ بڑھے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ خان صاحب کی حفاظت اگر اب ادارے نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ یہ 22 کروڑ عوام خود کرے گی۔ یہ پاکستان کا بیٹا ہے، اس نے پاکستان کو بچانے کے لیے وعدہ کیا ہے، اس کے لیے نکلا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان بچا کر ہی دم لیں گے۔ اس طرح ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈرنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں۔ خان کے سپاہی ہیں، انشاءاللہ ہمارا لیڈر اللہ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت ہے۔ ان کے پاؤں پر 3 سے 4 گولیاں لگی ہیں، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو کر پھر اسی لانگ مارچ میں لیڈ کرے گا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان پر حملے کی خبر اسکاٹ لینڈ میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اوورسیز پاکستانی اس حملے پر شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ڈنڈے کے مرکزی رہنما فخر چودھری، گلاسگو کے مرکزی رہنما پرنس وسیم اور پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے جنرل سیکرٹری انس رانا نے پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی آزادی کا سفر بزدلانہ حملوں سے رکے گا نہیں، نہ ہی عمران خان اور نہ ہی ان کے چاہنے والے گولیوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ سنتے ہیں۔ قاتلانہ حملہ عمران خان ہمارے لیڈر پہ کیا گیا ہے، یہ اصل میں پاکستان پہ کیا گیا ہے، پاکستان کی عوام پہ کیا گیا ہے۔ آج ریڈ لائن سی جو انہوں نے کراس کر لی ہے، آج کے بعد دیکھیں اس ملک کے اندر انصاف، عدل و انصاف ہم چاہتے ہیں، اس کا فوری ایکشن چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ حکومت پہ ذمہ داری جاتی ہے۔ جو حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے اب انشاءاللہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان پر حملہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر حملہ ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی کے ورکروں سے مطالبہ کریں گے کہ پرامن رہیں اور عمران خان کی کال کا انتظار کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں تمام ایسے کرپٹ لوگوں کو کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس مت کریں۔ 22 کروڑ عوام کی ریڈ لائن ہے، اس کو کراس مت کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر آزادی مارچ کے دوران ہوئے قاتلانہ حملے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری تمام ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے سیاست سے نفرت اور شدت پسندی کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے لوگ حملہ نہیں کرتے، جو حملہ کرتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا اور کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں۔ ہماری تمام ہمدردیاں، تمام دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو ایک آدمی شہید ہوئے تک خبر آئی ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ قوم اس معاملے پر اکٹھی ہو۔ ہم نے سیاست سے نفرت ختم کرنی ہے، ہم نے سیاست سے شدت پسندی کو ختم کرنا ہے، ہم نے سیاست کو دشمنی میں بدل دینے کو ختم کرنا ہے۔ سیاست ملک کے لیے ہوتی ہے، اقتدار کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی۔ سر لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نفرت اور شدت پسندی ختم کر، لیکن خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو، بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی کیا؟ جی ہر وقت تیار ہے۔ بیٹھنے کی جگہ اسمبلی ہوتی ہے سیاست بنانے کی۔ اسمبلی سے آج جس نے سر حملہ کیا ہے، آج جو بات ہے آج جس نے سر حملہ کیا اس نے سر آج جس نے حملہ کیا اس نے بڑی دلیری کے ساتھ اس حملے کی پوری ذمہ داری لی ہے، اور یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اب کہ لوگ حملہ کرتے ہیں اس کا دلیری کے ساتھ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے لوگ کوئی حملہ نہیں کرتے۔ نہیں جو آدمی حملہ کرتا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس سوچ کی جگہ پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے لیے داخلہ احسن اقبال صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، بالکل اسی نوعیت کا۔ جی بہت شکریہ۔ انتہا پسندی سر جدھر جاری ہے اس کے بارے میں پسندی، شدت پسندی کی پاکستان کی سیاست میں جگہ نہیں ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔
तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा कायद आज़म के पीर मुर्शिद अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुर के सज्जादा नशीन व जान नशीन पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती का कहना है कि इमरान खान ने तकमील पाकिस्तान की तहरीक शुरू कर दी है। अवाम का जोश जज्बा वही है जो पाकिस्तान बनने से पहले हमारे आबा व अजदाद का था। हमारे लाखों मुरीदैन तकमील पाकिस्तान की तहरीक में शाना बशाना शामिल होंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद कासमी से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखें। जो पाकिस्तान में मार्च हो रहा है इसमें ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं यहाँ बड़े फ़िक्रमंद हैं कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है जो रजीम चेंज हुआ है और उसके बाद की जो सूरत आ रही है और तसलसल से इमरान खान साहब प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। और ये जो अभी मार्च है फैसला कुन है, पीर मुनव्वर हुसैन जमाती हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये क्योंकि इस मामले में काफ़ी अवेयर भी हैं और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी फॉलो करते हैं इनको, तो इस वजह से हमने मुनासिब समझा कि इनसे इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। ये बताइएगा कि अभी मार्च को 5 दिन हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने दिन और जारी रहेगा और इस्लामाबाद कब पहुँच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़िम साहब बहुत शुक्रिया इन पर और 92 के लिए बहुत सारी दुआएं की। आज़ादी के लिए खान साहब का आज़ादी मार्च जो है वो शुरू हो चुका है, जैसे अभी आपने बताया कि आज 5 दिन इसको गुजर गए हैं। ये आज़ादी मार्च जो है ये फैसला कुन घड़ी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम की बका और पाकिस्तान की बका के लिए ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है। ये जंग इमरान खान की जंग नहीं है, ये हक और सच की जंग है और ये हुसैनी फ़िक्र की जंग है। मैं इस मौका पर अपने मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन और मुरीदीन से भी कहूँगा और पाकिस्तान के जुमला मशाइख़-उज़्ज़ाम और उलमाए किराम से अपील करूँगा कि वो खान साहब के साथ निकलें, इस हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बन जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ये बहाल हो जाए? मैं ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है पूरे का पूरा निज़ाम जो है इसको लपेटने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी रूल ऑफ लॉ जो है ये आप इसको अगर चेंज भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये मुल्क जो है वो अतिया खुदाबंदी है और इस्लाम की निशात सानिया का मरकज़ है। खान साहब दोबारा पूरी कुव्वत और ताकत के साथ वापस आएंगे और ये निज़ाम जो है वो तब्दील होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह से हमने जो वादा किया था और अहद किया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मुल्क में वो निज़ाम जो है वो नाफिज होगा और इसी में पाकिस्तान की भी बका है और पाकिस्तानी कौम की भी बका है। आपके जद ने तारीख पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप भी ये जो मार्च है, आज़ादी मार्च है, इसमें अहम किरदार अदा करेंगे? जी बिल्कुल। मेरे जद्दी आला हज़रत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी ने कायद आज़म जब उनके पास गए और उन्होंने अपील की तो हज़रत अमीर मिल्लत ने फरमाया कि पूरी कौम ने मुझे अपना अमीर मुंतखब किया है और मैं समझता हूँ कि मेरा बोझ आपके कांधों पर आन पड़ा है, इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता हूँ, आप फ़िक्र न करें। और आपने फिर पूरे बर्र सगीर का एक तूफ़ानी दौरा किया और सबसे पहले आपने कौम को ये नारा दिया कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में शामिल हो। अरशद शरीफ जिस तरह कत्ल हुए कीनिया में, फिर उसके बाद बाकी कुछ जर्नलिस्ट भी जो इस आज़ादी मार्च की सपोर्ट के लिए इमरान खान साहब बयानिया को सपोर्ट कर रहे थे, वो सारे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? अरे अरशद शरीफ साहब थे, वो जुर्रतमंद बाकिरदार सहाफ़ी थे और उन्होंने इनकी बात को तस्लीम न किया, इस वजह से इन्होंने उनको मरवा दिया। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सुना पीर साहब की गुफ्तगू और इनका कहने का मकसद यही है कि पाकिस्तान में जल्द ही इंशाल्लाह ये मार्च जो है वो कामयाब होगा, आज़ादी मार्च, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानिब से पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी, नायब सदर असद नवाज और दीगर ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को फ्लॉप शो करार दे दिया। तकरीब में जयालों की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। बरतानिया के दौरे पर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल के एजाज में इशाइये का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानब से मशरकी लंदन में किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने इशाइये से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां भुट्टो खानदान ने दी हैं। आज अगर पाकिस्तान दुनिया के सामने एटमी पावर है तो इसका क्रेडिट भी जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाया। इशाइये से खिताब करते हुए दीगर पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के दफा को और भी मजबूत बनाया,
जमहूरियत की वका के लिए कुर्बानी देकर हमेशा के लिए अमर हो गईं। लॉन्ग मार्च के हवाले से मुकर्रिरीन ने कहा कि यह फ्लॉप शो है। हुकूमत से निकलने के बाद इमरान खान हवास बाख्ता हो गए हैं। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी रहनुमाओं और मेहमान खुसूसी का कहना था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है और जिस तरह माजी में गरीबों के लिए तरक्याती मंसूबे बनाए गए थे, अब भी पीपल्स पार्टी गरीबों के हकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद करती रहेगी। वो इंडिया को खुश कर रहे हैं, तो इंडिया कहता है, इंडिया के वहाँ जितने भी चैनल है, जितने भी उनके वहाँ, वो कहते हैं कि इससे ये तो इमरान खान ही काफ़ी है, हमें तो तकलीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जमहूरियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहा है जिसका नाम है इमरान खान। इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी बदहाली कर दी है। और आज भी अगर उससे पूछा जाए कि जनाब आपने कोई एक ऐसा काम किया हो जो आपने वादा किया था, या आपने कंटेनर पे खड़े होकर जो काम किया था, बस आगे सिर्फ गालियाँ ही होंगी, उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत को उस नेज पे ला खड़ा किया जहाँ पे अफगानिस्तान आज से 25 साल पहले था, जहाँ कबाइल में, इलाकों में और बंदूक और गोली की सियासत हो रही थी। मुझे खदशा है कि अल्लाह ना करे कि एक दिन आएगा ये इमरान खान पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहा है। उससे पहले मैं तमाम अदारों से और उन लोगों से जो इसके कंट्रोल कर सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब हालात को कंट्रोल करके पाकिस्तान को यकजा और मजबूत और डेमोक्रेटिक मुल्क बनाया जाए। कोई एजेंडा नहीं है, कोई उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर उन्होंने कुछ देखना है, लॉन्ग मार्च से सीखना है, तो वो पाकिस्तान पीपल से उन्होंने गाइडेंस लेनी चाहिए। इसका कोई एजेंडा नहीं है। जो इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है और पाकिस्तान के इदारे हमारे इदारे हैं, और हम आवाम जो हैं वो अपने इदारों के पीछे जो हैं वो खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जो लॉन्ग मार्च के ड्रामे ये जो दोबारा चल रहे हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे पाकिस्तान में भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी उनको मुस्तरद कर दिया। इशाइये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, नायब सदर हसन नवाज, माशूक अली जतोई, मुश्ताक लाशारी और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, मशरकी लंदन। माहिर कानून रिजवान सुलहरिया ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदादों पर पाकिस्तान में कब्जे के हवाले से मरबूत पॉलिसी बनाना होगी। मौसर कानून साजी करके ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए हमेशा 92 न्यूज़ ने बड़ी अच्छी आवाज़ उठाई है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम सिफारिशें ढूंढते हैं, हम देखते हैं कि कहीं को बंदा ढूंढे, कहीं को रिश्तेदार ढूंढे, को अफसर की सिफारिश कराएं और किसी महकमे के पीछे जाएं, हाई कमीशन में चले जाएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपका केस कोर्ट में है, लिटिगेशन में चल रहा है, तो कोई आपका कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो या अदालतें कर सकती हैं, या वकला कर सकते हैं, या आर्बिट्रेशन के ज़रिए आप मामला को हल कर सकते हैं, या आप लेकिन बीइंग वकील, आप ज़ाहिर बरतानिया में प्रैक्टिस करते हैं, आपके पाकिस्तान में भी शायद दफातर होंगे। बीइंग वकील क्या करना चाहिए लोगों को? कुछ समझ नहीं आती। वो तो हाई कमीशन में दरख्वास्त लेके जाते हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के यहाँ पे नुमाइंदे आते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, तो मसाइल हल नहीं होते। ऑब्वियसली पाकिस्तान हाई कमीशन के पास कौन से इख्तियार है कि जो कोर्ट्स में केस है उनको हल करें। और वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ कमीशन को भिजवा देंगे, जो वफाकी ओवरसीज़ कमीशन है या पंजाब का ओवरसीज़ कमीशन है, उधर भिजवा देंगे। तो वो भी आगे ऑब्वियसली अपनी टीम को दे देंगे। इस लिहाज से अगर देखें तो हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स उनके पास मौजूद हैं, जिनमें से बहुत थोड़ी हल होती है। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि जो मुनासिब फोरम है वो अदालत है। अदालत के जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके स्पेशल रूल्स बनाए हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केस हैं उनको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी लॉयर्स हैं हमारे दोस्त, उनको पता ही नहीं है, या वो जानबूझ के किसी कुछ वजूहात की वजह पर उन कोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते। वो हर ज़िले में, हर तहसील में, हाई कोर्ट के लेवल पे ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए खुसूसी कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। उनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि ऐसे वकला को यूज़ करें जिनका इंटरनेशनल भी एक्सपोजर हो और पाकिस्तान में भी एक्सपोजर हो। लेकिन यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो 3 वीक 4 वीक की छुट्टी पर जाते हैं और वहाँ जाके एक डेढ़ ही पड़ती है, तो उसके बाद फिर वही केस, तो इसीलिए क्या करें फिर वो? तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अच्छा वकील करना चाहिए जो कि उनको सिर्फ उसी वक्त इनवाइट करे कि जब उनको वाकई उनकी ज़रूरत हो। अदरवाइज़ वो उनको केसेस की अपडेट करें और विदिन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केसेस जो हैं वो हल हो सकते हैं। कैसे यहाँ तो साल से 20-20 साल से लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, लोग परेशानी में, कई लोग दुनिया से भी जा चुके हैं, लेकिन उनके मुकदमे वहीं के वहीं हैं। वो ऑब्वियसली ऐसे ही है, उसकी वजह कि तारीखों का सिस्टम इस किस्म का है वहाँ
पे कि लोग तारीखों पे पेश नहीं होते, लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया कि स्पेशली हाई कोर्ट का यहाँ पे पूरा वफद आया था जिसने पहले बताया था कि ओवरसीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं और वाकई हो रहा है काम। मसला ये है कि मुनासिब फोरम पे, मुनासिब जगह पे जाके, मुनासिब अच्छे वकील के ज़रिए अगर आप काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको 6 महीने नहीं तो साल या 1.5 साल में आपका केस का फैसला हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली हो जाएगा। और ये वही प्रॉपर वे है। और उसके साथ साथ वकील वो ढूंढें जो निगोशिएट करे अगली पार्टी के साथ, ताकि मामला जो है वो किसी टेबल पे भी आगे बाद औक़ात हल हो जाता है। जैसे हम बरतानिया में प्रैक्टिस करते हैं तो 90% हमारे केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल होते हैं, तो सम टाइम आप केसेस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिटिगेशन करने में जो फ़ायदा है पाकिस्तानी वकला को लगता है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है। हालांकि अगर जितनी लिटिगेशन कम होगी, जितना निगोशिएशन से फ़ायदा होगा, उतने केसेस ज़्यादा आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इमरान खान पर हमले की मजम्मत की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सरकारी तौर पर बयान जारी करते हुए इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक वर्कर के लवाकिन से भी हमदर्दी का इजहार किया। वाक़े में ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का इमरान खान पर हमले के वाक़े पर इजहार मज़म्मत। जस्टिन ट्रूडो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान और उनके हामियों पर हमला नाकाबिल कबूल है और उसके शदीद मज़म्मत करते हैं। हमारे माशरे और किसी भी जमहूरियत में ऐसे तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इमरान खान और दूसरे तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। पीटीआई मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर नवाज खान जदून ने तहरीक इंसाफ के कायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मज़ाहमती बयान में उनका कहना था कि इमरान रेड लाइन है जिसे क्रॉस किया गया है। हमले की साजिश को बेनकाब किया जाए और हकीकी मनसूबा साजों को सख्त सज़ा दी जाए। उनका और क्या कहना था, ये जानते हैं। खान साहब के कंटेनर पे जो कातिलाना हमला हुआ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत की हकीकी आज़ादी की रोकने की कोशिश है और इन हथकंडों से कोई भी फ़ायदा नहीं है। हकीकी आज़ादी जो लॉन्ग मार्च होता रहेगा और हकीकी आज़ादी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। हम इन चीज़ों से न खान डरता है और न खान के जो पैरोकार है वो इन चीज़ों से डरते हैं। जितने भी लोग उसमें ज़ख्मी हुए, हमें उनका बड़ा दुख है और खान साहब अभी तक पूरी इतला नहीं है, लेकिन जितनी इतला अभी तक आई हुई है उसके मुताबिक खान साहब के पाँव पे गोलियां लगी हुई है। उनको शौकत खानम लाहौर शिफ्ट किया हुआ है, अभी उनका मुआयना होगा और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। जो जिसने भी फायरिंग की है ये एक हथकंडे, ये पहले भी बड़े यूज़ हुए हैं और अभी दोबारा ये सारे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन है। दोनों मुल्क वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। ये कहना है अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान मसूद अहमद खान का, जो वाशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और एंग्रू कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन है और मुस्तकबिल में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद वसअत के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात भारत या अफगानिस्तान से मुंसलिक नहीं और दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात हैं। अटलांटिक काउंसिल के सदर फ्रेड कैंपी और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तजारत और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद ने इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस की कामयाब इनकाद और खुसूसन उसमें एक निजी कॉरपोरेशन और 2 जामियात की शराकत को यकीनी बनाने पर सफ़ीर पाकिस्तान ने फ्रेड कैंपी और दीगर मुंतसबीन को खराज तहसीन पेश किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में बाहमी रवाबित के तौर पर अपनी वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ज़र नौ अहाता करते हुए तक़वियत दे रहे हैं। नीदरलैंड के शहर दी हेग में कीनिया के सिफारत खाने के सामने मारूफ एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहरे का अहवाल डॉक्टर कामरान की रिपोर्ट में। मारूफ एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ नीदरलैंड में कीनिया के सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने हाथों में अरशद शरीफ की तस्वीर और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर अरशद शरीफ के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के बारे में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कीनिया के सिफारत खाने के सामने अरशद शरीफ को इंसाफ दो और अरशद शरीफ के कातिलों को पकड़ो के नारे लगाए। मुजाहरे से बाबर भट्टी, शुमाइला अनवर राजा, उस्मान यूनस, फारूक राजा और राजा बशारत ने खिताब किया और कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात की जाए और कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उनका मजीद कहना था कि इस कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा या किसी और आलमी तंजीम की ज़ेर निगरानी होनी चाहिए। कीनिया की पुलिस चूँकि दुनिया में किराए के कातिल के तौर पर जानी जाती है,
मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि अरशद शरीफ जिस किस्म की बेबाक सहाफत करते थे उस वजह से उनके बहुत से दुश्मन थे जो उनके कत्ल में मुलविस हो सकते हैं। हम अरशद शरीफ साहब के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सब जो है उनके लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं और हमारा केनियन गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है कि उनके अरशद शरीफ के केस में एक इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि इस मर्डर का जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो है इंक्वायरी की जाए, वहाँ जो है केस जो है चलाया जाए। Tegen wat er is gebeurd in Pakistan. Wij willen rechtvaardigheid voor een hele eerlijke journalist die opkwam voor de waarheid, die opkwam voor het land, die eigenlijk opkwam voor ons en onze rechten. काबिल आदमी, काबिल जर्नलिस्ट जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और उसका जो जालमाना कत्ल केनियन पुलिस के हाथों केनिया में हुआ है, उसके लिए हम डिमांड करते हैं कि केनिया एक कमीशन बनाए जिसके तहत उसकी तहकीक की जाए। अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसकी जो कुर्बानी है वो ज़ाया नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह तब्दीली बहुत करीब है और इनकलाब आने वाला है और ये अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है वो उसका पहला कतरा है और इंशाअल्लाह अब पाकिस्तानी अवाम में शऊर आ चुका है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे उसका यूएनओ के तहत एक आज़ादाना तहकीक हो और कमीशन बने और इसके अलावा आज हम केनियन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें एक पिटीशन देंगे जिसके तहत ये डिमांड की जाएगी। मुजाहिरीन ने कीनिया के सिफारत खाने में एक पटिशन भी जमा करवाई जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। कीनिया के सिफारत खाने का अमला पटिशन को वसूल करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन मुजाहिरीन के इसरार और नारेबाजी की वजह से उन्हें पटिशन वसूल करनी पड़ी। शुरका का कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दी हेग में केनियन एम्बेसी के बाहर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने मुजाहरा किया है